Find the derivatives of the following functions with respect to x. अब सबसे पहला जो फंक्शन दिया है वो है x रेज टू 12। तो सपोज इसे हम नाम असाइन कर देते हैं y। लेट y बी इक्वल टू x रेज टू 12। अब डेरिवेटिव हम लेते हैं इस फंक्शन का, तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get, ये आएगा dy by dx is equal to d by dx of x raised to 12. Now this is of the form x raised to n. अब x raised to n का डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x raised to n minus 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। So derivative of x raised to 12 is 12 times x raised to 12 minus 1. So we finally have 12 times x raised to 11. अब सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ दिया है x raised to minus 9. So we say let y be equal to x raised to negative 9। अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू n, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x raised to negative 9। Now if we apply this formula, तो हमें मिलेगा, ये आएगा minus 9 into x raised to minus 9 minus 1। So finally we have minus 9 into x raised to, ये हो जाएगा negative 10। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus 9 अपॉन, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले तो हो जाएगा x रेज टू 10। अब थर्ड देखते हैं x रेज टू 3 बाई 2। सो अगेन वी से लेट y बी इक्वल टू x रेज टू 3 बाई 2। अगेन दिस इज द फॉर्म x रेज टू n। सो डिफरेंशिएटिंग विथ respect to x we get, now let us differentiate, so dy by dx is equal to, right में आएगा derivative of x raised to 3 by 2। now again applying the formula for derivative of x raised to n, इस पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1। सो वी हैव 3 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू, अब 3 बाई 2 माइनस 1, ये इक्वलाइज करते हैं, सो 2 1s are 2, सो 3 माइनस 2 becomes 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। Now this could be written as 3 by 2. Now x raised to half को हम लिख सकते हैं as root x. So yes, this is dy by dx. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है, 7x root x. Okay. So again we say let y be equal to 7x into root x। अब डेरिवेटिव लेने से पहले ये दो x टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं। देखिए ये x तो एज इट इज रहेगा, सो दिस इज x रेज टू 1, एंड अगर रूट हम रिमूव कर देते हैं दिस बिकम्स x रेज टू हाफ। सो y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स रेज टू, अब इंडाइसिस का रूल यहाँ पे यूज करेंगे, a रेज टू m इंटू a रेज टू n is a raised to m plus n, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो 1 प्लस हाफ
So we have y is equal to 7 times x raised to, now 1 plus half, so 2 ones are 2 plus 1, तो ये हो जाएगा 3 by 2, right? This is 1 and a half यानी 3 by 2. And now we can differentiate with respect to x. देखिए ये x raised to n फॉर्म में आ गया. So differentiating with respect to x, we get ये आएगा dy by dx. अब ये x टर्म के साथ एक नंबर है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज द कोएफिशिएंट. 7 ये x टर्म का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हम साइड रख देंगे. सो 7 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x raised to 3 by 2, and now we have x raised to n का फॉर्मूला. सो 7 into ये आएगा 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1. Now again if we proceed, 7 3s ये हो जाएगा 21 upon 2 into x raised to, now 2 ones are 2, so 3 minus 2 हो जाता है 1, so x raised to half, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 by 2, and this could be written as root x. अब अगला देखते हैं, फिफ्थ, 3 raised to 5. Okay, so again we say let y be equal to 3 raised to 5. अब इसमें वेरिएबल टर्म है ही नहीं, राइट हैंड साइड पे it's a constant term, right? 3 raised to 5, so don't get confused. ये x raised to n, x term तो है ही नहीं इसमें, right? 3 raised to 5 तो एक fixed constant value है, right? That is 243. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 करेंगे तो ये आएगा 243. This is actually 243. So this is a constant. So we differentiate with respect to x. So we have dy by dx is equal to derivative of 3 raised to 5. So derivative of constant we know is 0. तो इधर हमें मिलेगा dy by dx is equal to 0. Differentiate the following with respect to x. अब पहला यहाँ जो फंक्शन दिया है वो है x raised to 5 plus 3 times x raised to 4. So we say let y be equal to x raised to 5 plus 3 times x raised to 4. अब differentiate करते हैं with respect to x. So differentiating with respect to x, we get ये आएगा dy by dx is equal to d by dx of this entire term, that is x raised to 5 plus 3 times x raised to 4. अब यहाँ पे हम एडिशन रूल यूज करेंगे, ये दो फंक्शंस के बीच में एडिशन है, राइट? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. तो इसे हम सेपरेट करते हैं. सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 प्लस, अब यहाँ पे x टर्म के साथ एक नंबर है तो ये इसका कोएफिशिएंट हुआ, तो कोएफिशिएंट को तो हम साइड रखते हैं. सो वी हैव प्लस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4. अब यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into x raised to 5 minus 1 plus 3 times, यहाँ भी x raised to n का फॉर्मूला 4 into x raised to 4 minus 1. So finally we have 5 times, ये हो जाएगा x raised to 4 plus 3 4s ये होता है 12 और ये आएगा x cube. So the answer is 5 times x raised to 4 plus 12x cube. अब अगला फंक्शन दिया है x root x plus log x minus e raised to x. So again
we say let y be equal to x times root x plus log x। अब ये इसका जो बेस है वो e रहता है। रिमेंबर यहाँ पे हम नेचुरल लॉग्स यूज करते हैं, तो आइडियली यहाँ पे बेस e आना चाहिए, बट दैट वी अज्यूम कि ये डेरिवेटिव है, और अगर कुछ बेस नहीं दिया है यहाँ पे तो वी टेक इट एज बेस e माइनस e रेज टू x। अब सबसे पहले ये जो x रूट x है, इससे देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। x रूट x को हम लिख सकते हैं एज x रेज टू 1 इनटू, और ये रूट x को हम लिख सकते हैं एज x रेज टू हाफ। So we have a raised to m into a raised to n. So this is a raised to m plus n. Indices वाला रूल यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ। तो ये कंबाइन होके हो जाएगा ना, 2 1s are 2 plus 1, so that is 3/2। तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे x raised to 3/2 से। So therefore we have y is equal to x raised to 3/2 plus log x minus e raised to x, and now we differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get ये आएगा dy by dx is equal to d by dx of this entire term, that is x raised to 3/2 plus log x minus e raised to x। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव्स का। u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, तो ये तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। अब x रेज टू 3/2, दिस इज द फॉर्म x रेज टू n, तो यह आएगा 3/2 into x raised to 3/2 minus 1 plus log x का डेरिवेटिव होता है 1/x minus e raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x। Now let us simplify this। ये आएगा 3/2 into x raised to, now 2 1s is 2, so 3 minus 2 is 1 upon 2 plus 1 by x minus e raised to x। Now finally x raised to half को हम लिख सकते हैं as root x। So 3/2 times root x plus 1 by x minus e raised to x। So this is dy by dx। अब नेक्स्ट यहाँ दिया है x रेज टू 5/2 प्लस 5 टाइम्स x रेज टू 7/5। So again we say let y be equal to x raised to 5/2 plus 5 times x raised to 7/5। Now we can directly differentiate। So differentiating with respect to x, we get, अब लेफ्ट में आएगा dy by dx is equal to, राइट साइड पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5/2 plus 5 times x raised to 7/5। अब यहाँ पे हम एडिशन रूल यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, तो यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस 5, ये x टर्म का कोएफिशिएंट है तो उसे हम साइड रख देते हैं। सो 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7/5। अब x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करते हैं।
So this becomes 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1 plus 5 times ये n नीचे आ जाएगा, so 7 by 5 into x raised to 7 by 5 minus 1. Now let us simplify this further. ये आएगा 5 by 2 into x raised to, now 2 ones are 2, so 5 minus 2 हो जाता है 3, so ये x raised to 3 by 2. अच्छा ये 5 और ये 5 cancel out हो जाते हैं, plus 7 times x raised to, now 5 ones are 5, so 7 minus 5 is 2, तो power में आएगा 2 by 5. So yes, this is dy by dx. नेक्स्ट है 2 by 7 times x raised to 7 by 2 plus 5 by 2 times x raised to 2 by 5. So again we say let y be equal to 2 by 7 times x raised to 7 by 2 plus 5 by 2 times x raised to 2 by 5. अभी दोनों x रेज टू n फॉर्म में है, कोई एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get ये आएगा dy by dx is equal to d by dx of ये पूरा टर्म 2 by 7 into x raised to 7 by 2 plus 5 by 2 into x raised to 2 by 5. ओके, अब इंडिविजुअल हम डेरिवेटिव लेंगे, एडिशन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. अब अगर ये पहला टर्म हम देखें 2 by 7 इज द कोएफिशिएंट, तो वो हम साइड रख देते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 by 2 प्लस ये भी कोएफिशिएंट है तो इसे हम साइड रख देते हैं 5 by 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2 by 5. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. ये आएगा 2 by 7, यहाँ x रेज टू n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1 प्लस 5 by 2 इंटू ये भी x रेज टू n फॉर्म में है तो ये आएगा 2 by 5 इंटू x रेज टू 2 by 5 minus 1. Now we simplify this further. ये दोनों देखिए रेसिप्रोकल्स है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 7 भी निकल गया, तो यहाँ पे रह जाएगा x रेज टू, ना 2 ones is 2, so 7 minus 2 ये हो जाता है 5 by 2. यहाँ पे भी ये दोनों रेसिप्रोकल्स है देखिए, सो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, so we have plus x raised to 5 ones are 5, so 2 minus 5 is minus 3 by 5. अब इसे चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x raised to 5 by 2 प्लस इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये रहेगा 1 upon x raised to 3 by 5. So this is dy by dx. अब नेक्स्ट है रूट एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो वी से लेट y बी इक्वल टू रूट एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब सबसे पहले इसे हम एक्सपैंड करेंगे. देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पार्ट पे हम यूज करेंगे ऑन दिस पार्ट, राइट. तो इसे हम एक्सपैंड करते हैं पहले. सो वी हैव y इज इक्वल टू, एंड रूट x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू हाफ. नाउ लेट अस एक्सपैंड. a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर
plus 2 into a into b plus b square. So further we have y is equal to x raised to half into ये हो जाएगा x raised to, now 2 2s are, that is 4 plus 2 1s are 2 और ये x square, so this is 2x square plus 1 square is 1. अभी x raised to half को ये तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. So we have y is equal to x raised to half into x raised to 4 plus ये 2 हम आगे लिख देते हैं x raised to half into ये x square plus x raised to half into 1, so that is x raised to half. अब indices के लॉज हम यूज करेंगे. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, तो हो जाएगा x raised to half plus 4 plus 2 times x raised to, ये रहेगा half plus 2 plus x raised to half. Now we proceed further. So y is equal to x raised to 4 2s are 8 plus 1, that is 9, तो ये रहेगा 9 by 2 plus 2 times x raised to 2 2s are 4 plus 1, that is 5, तो आएगा 5 by 2 plus x raised to half. अब तीनों टर्म्स देखिए x raised to n फॉर्म में आ गए and now we can differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x we get आएगा dy by dx is equal to derivative of ये तीन terms x raised to 9 by 2 plus 2 times x raised to 5 by 2 plus x raised to half. अब तीनों का डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं. एडिशन रूल आएगा यहाँ पे. तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 9 by 2 प्लस 2 ये कोएफिशिएंट है, सो 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 by 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू हाफ. सो वी प्रोसीड फर्दर. अभी x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 by 2 इंटू x रेज टू 9 by 2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा 5 by 2 इंटू x रेज टू 5 by 2 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा हाफ into x raised to half minus 1. So we have 9 by 2 into x raised to 2 ones are 2, 9 minus 2 ये हो जाएगा 7 by 2. ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया. So plus 5 times x raised to, now 2 ones are 2, so 5 minus 2 तो ये रहेगा 3 by 2 plus half into x raised to, now half minus 1 is minus half. अब yes you can leave it this way या फिर ये नेगेटिव पावर को हम निकाल देते हैं. तो ये तो as it is रहेगा, सेकेंड टर्म भी as it is रहेगा and this could be written as 1 upon 2 times x raised to half and x raised to half को हम root x भी लिख सकते हैं. So this is 9 by 2 into x raised to 7 by 2 plus 5 times x raised to 3 by 2 plus 1 upon 2 root x. So yes, this is dy by dx. Alternatively हम ये common factors भी निकाल सकते हैं, but yes this is also fine. So this is dy by dx. Differentiate with respect to x.
अब यहाँ दिया है पहला फंक्शन x क्यूब इंटू लॉग x. So we say let y be equal to x cube into log x. अब ये algebraic फंक्शन है और ये logarithmic फंक्शन है. सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना होगा डेरिवेटिव्स का, बिकॉज बीच में इनटू दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, यानी जो प्रोडक्ट रूल है, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. So first term into derivative of second plus second into derivative of first. तो ये हमारा u टर्म हो गया और log x ये हमारा v टर्म हो गया. So say differentiating with respect to x we get, अब लेफ्ट में आएगा dy by dx. So dy by dx is equal to, अब डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं. ये वाला तो u है और ये v है. सो वी हैव फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. एंड नाउ वी प्रोसीड. तो ये आएगा एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस यह आएगा log x इंटू, अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला. नाउ इफ वी सिंप्लीफाई, ये एक एक x इसमें से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये एक कट हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं. सो वी हैव 3x स्क्वायर into log x. Now we can simplify this further, x square common leke. So x square into 1 plus 3 log x. So this is dy by dx. नेक्स्ट है x रेज टू 5 बाई 2 इंटू ई रेज टू एक्स. यहाँ फिर से हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा. ये algebraic फंक्शन है और e रेज टू x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. सो इसे let y be equal to x raised to 5 by 2 into e raised to x. तो ये u आ गया टर्म और ये आ गया v. सो u into v वाला रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. सो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो यूज करते हैं यहाँ पे. सो वी से डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get आएगा dy by dx. Now let us apply the product rule directly. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म x raised to 5 by 2 into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x raised to 5 by 2. Now let us proceed. ये as it is रहेगा x raised to 5 by 2 into, now derivative of e raised to x होता है e raised to x plus, अब ये e raised to x as it is रहेगा into, अभी x raised to n वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1. Now proceed further. ये हमारा x raised to 5 by 2 into e raised to x plus ये कोएफिशिएंट आगे लिख देते हैं 5 by 2, फिर लिखते हैं e raised to x and ये 2 1s are 2, so 5 minus 2 that is 3, तो यह रहेगा raised to 3 by 2. We can take e raised to x as a common factor. अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ऐसे अगर हम रख दें तो भी ठीक है, but yes we can see e raised to x clearly is a common factor.
वैसे तो x रेज टू हाफ भी हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, because this is 2.5 and this is 1.5, right? So x raised to half वो टर्म भी हम कॉमन ले सकते हैं, but that is okay. Let us just take e raised to x common, because डेरिवेटिव तो हमने ले ही लिया है ऑलरेडी. तो ब्रैकेट में आएगा x raised to 5/2 plus 5/2 times x raised to 3/2. So yes, this is dy by dx. नेक्स्ट है यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन का. सो ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स. फिर से हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. सो लेट y बी इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स. नाउ वी डिफरेंशिएट with respect to x and we get ये आएगा dy by dx is equal to, अब यहाँ पे u into v वाला रूल यूज करेंगे. सो फर्स्ट टर्म into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस फिर आएगा सेकेंड टर्म यानी log x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज e raised to x. सो ये e raised to x as it is. और डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x प्लस फिर ये log x as it is. Now derivative of e raised to x is e raised to x itself. अब दोनों टर्म्स में हम e raised to x कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. तो ब्रैकेट में आएगा 1/x प्लस log x. So this is dy by dx. नेक्स्ट है एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स. अब एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई रेज टू एक्स देखिए पावर में एक्स है. सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहाँ एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज होगा एक्स क्यूब में, और यहाँ पे ए रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो प्लीज इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी. तो एक्स रेज टू एन, राइट, एन यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है और बेस में एक्स टर्म होगा. सो दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन. इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द फॉर्म a रेज टू x, पावर में x है ये. अब a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, एंड बाय डिफॉल्ट इसका बेस होता है e, राइट, नेचुरल लॉग. सो ये दोनों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. दिस इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल. और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट y बी इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 3 रेज टू एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get ये आएगा dy by dx is equal to, पहले आएगा x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x प्लस 3 रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. तो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. सो ये x क्यूब एज इट इज इंटू, नाउ दिस इज द फॉर्म a रेज टू x, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव आएगा a रेज टू x यानी 3 रेज टू x इंटू लॉग a दैट इज लॉग 3 प्लस ये एज इट इज रहेगा. अब ये x रेज टू n ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा तो ये आएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर. अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं. एक तो 3 रेज टू x हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, सो वी कैन टेक x स्क्वायर द लोअर पावर एज अ कॉमन फैक्टर. अब देखते हैं क्या क्या रह गया. ये x क्यूब में से x स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा x. ये टर्म तो हमने बाहर ले लिया. सो x इंटू वी हैव log 3 प्लस ये 3 रेज टू x हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर को भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ रह जाता है 3. सो x log 3 प्लस 3.
So yes, this is dy by dx. Find the derivative of, अब यहाँ फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो ये डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल या डिवीजन रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव्स का. नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ u upon v, we start with v. Okay, so v into derivative of u minus u into derivative of v अपॉन v स्क्वायर. तो ये जो है न्यूमरेटर ये आ गया u और डिनोमिनेटर है v. तो बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और जो टर्म्स हैं उनके डेरिवेटिव्स लेते जाने. सो लेट अस यूज दिस रूल, द डिवीजन रूल या कोशेंट रूल कहते हैं इसे. सो लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन x square minus a square. So differentiating with respect to x, we get, ये लेफ्ट में आएगा dy by dx. अब डायरेक्टली ये वाला रूल हम अप्लाई कर देते हैं. सो वी स्टार्ट विथ v यानी डिनोमिनेटर, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू derivative of the numerator, that is x square plus a square minus, अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, फिर आएगा x square plus a square into derivative of x square minus a square and this whole thing divided by denominator का square यानी v square, x square minus a square the whole square. And now we proceed further. अभी simplification, ये derivatives के बाद फिर simplify ही करना है. अब ये तो as it is रहेगा, ये bracket x square minus a square. अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स है, बीच में एडिशन है. अब हम डायरेक्टली इनका डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं, इंडिविजुअल लेके फिर स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. तो डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो आ जाता है 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, इसमें एक्स टर्म है ही नहीं, राइट, दिस इज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 0. सो बेसिकली सिर्फ 2x ही आएगा माइनस फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगेन ये दो टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, a square is constant तो उसका डेरिवेटिव 0. so overall again we'll get 2x divided by, ये टर्म as it is ही लिखना है, x square minus a square the whole square. अब न्यूमरेटर में 2x और ये 2x हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और ये दो ब्रैकेट्स हम सबट्रैक्ट करेंगे. देखिए बीच में सबट्रैक्शन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज का ध्यान देना है आपको, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. So we have 2x into, now minus a square minus a square, so that is minus 2a square और डिनोमिनेटर तो as it is रहेगा x square minus a square the whole square. अब 2 2 ये 4, so minus 4 a square x इनका प्रोडक्ट divided by x square minus a square the whole square. So this is dy by dx. अब next है 3x square plus 5 upon 2x square minus 4. Again this is the form u upon v. So quotient rule हम use करेंगे, ये हमारा u term हो गया और ये v. एंड क्वोशंट रूल होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर.
तो वो वाला हम रूल यहाँ पे यूज करेंगे. सो लेट y be equal to 3x square plus 5 upon 2x square minus 4. Now we differentiate with respect to x and we get, तो अगर हम quotient rule यूज करते हैं, we get dy by dx is equal to, पहले आएगा 2x square minus 4 into derivative of 3x square plus 5 minus, फिर आएगा 3x square plus 5 into derivative of 2x square minus 4, the whole thing divided by v square, यानी denominator का square. So 2x square minus 4 the whole square. Now ये bracket as it is रहेगा 2x square minus 4. अब इसमें ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, 3 कोएफिशिएंट है और एक स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. सो 3 into 2x दैट बिकम्स 6x. 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0. सो ओवरऑल हमें मिलेगा 6x माइनस, फिर ये एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज. अब इसमें भी 2 कोएफिशिएंट है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे. अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x इंटू 2 ये हो जाएगा 4x. 4 ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0. सो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. अब डिनोमिनेटर तो जैसा है वैसे ही रहेगा. सो डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर. अब यहाँ पे x और इसमें भी x है, ये कॉमन ले लेते हैं हम. सो ब्रैकेट में ये आएगा इधर 6 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 4, फिर ये 4 इधर रह जाएगा, 4 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर. अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गया, तो ये x एज इट इज, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12x स्क्वायर, 6 4 इज 24, 4 3 12, ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 20 एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम 2x स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर. ये 12x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. So we have x into minus 24 minus 20, ये रहेगा minus 44, negative 44 divided by 2x square minus 4 the whole square. So finally ये अगर हम multiply करते हैं, ये आएगा minus 44x divided by 2x square minus 4 the whole square. So this is dy by dx. अब नेक्स्ट यहाँ दिया है log x अपॉन x क्यूब माइनस 5. सो अगेन कोशेंट रूल या डिवीजन रूल आएगा. ये है u और ये वाला टर्म है हमारा v. सो अगेन लेट y be equal to log x अपॉन x cube minus 5. So we differentiate with respect to x and we get, यहाँ पे लिखते हैं dy by dx is equal to, अब u upon v रूल स्टार्ट होता है v से. So we have x cube minus 5 into derivative of log x माइनस, अब ये इंटरचेंज करते हैं, फिर आएगा log x into derivative of x cube minus 5
और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में v स्क्वायर यानी x क्यूब माइनस 5 द होल स्क्वायर. नाउ लेट अस प्रोसीड. अब ये पहला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा x cube minus 5. Now derivative of log x is 1 by x minus ये log x as it is into इधर दो टर्म्स है. x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, 5 का डेरिवेटिव 0, इट्स अ कांस्टेंट, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5 द होल स्क्वायर. अब इसे हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वी कुड लीव द आंसर दिस वे. सो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा. देखिए एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स है ये, माइनस दिस इज 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और नीचे एक्स क्यूब माइनस 5 द होल स्क्वायर. सो अगर ये डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए, इसे अगर हम इक्वलाइज करते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 1, तो अगर ये दोनों न्यूमरेटर में जो ये x और ये 1 है, इसे अगर इक्वलाइज करें सो वी गेट एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस दिस इंटू 1, राइट. सो एक्स क्यूब माइनस 5 एंड इससे अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x क्यूब इंटू लॉग एक्स, the whole thing divided by x, और फिर नीचे further divided by x cube minus 5 the whole square. And finally ये x नीचे अगर हम ले लेते हैं denominator में, so we have x cube minus 5 minus 3x cube into log x divided by x times x cube minus 5 the whole square. So this is dy by dx, and we can also leave the answer at this step, वो भी ठीक है. और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इस फॉर्मेट में हमें आंसर मिलता है. So yes, this is dy by dx. अब ये क्वेश्चन भी क्वोशंट रूल के ऊपर बेस्ड है. ये आ गया हमारा u और ये आ गया v. So again we go by the u upon v rule, that is the division rule. So let y be equal to 3 times e raised to x minus 2 upon 3 times e raised to x plus 2. तो अभी क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं. So we say differentiating with respect to x, we get ये आएगा dy by dx is equal to, तो v से स्टार्ट करते हैं यानी डिनोमिनेटर से. So 3 times e raised to x plus 2 into derivative of 3e raised to x minus 2 माइनस, अब ऑर्डर चेंज, तो 3e raised to x minus 2 into derivative of 3e raised to x plus 2 divided by v square यानी डिनोमिनेटर स्क्वायर. So 3 times e raised to x plus 2 the whole square. अब फर्दर ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3e raised to x plus 2 into, इसमें दो टर्म्स है. देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे 3 इज द कोएफिशिएंट एंड e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x. तो इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव हुआ 3 times e raised to x माइनस 3 times e raised to x minus 2 into, सिमिलरली यहाँ पे ये 2 का डेरिवेटिव 0, 3 इज द कोएफिशिएंट एंड e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x. ये भी आएगा 3 times e raised to x, the whole thing divided by 3 times e raised to x plus 2 the whole square. अब न्यूमरेटर में
ये 3e⁻x और यहाँ से 3 टाइम्स e⁻x, ये कॉमन ले लेते हैं हम। तो फिर ये और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट, बीच में सबट्रैक्शन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जाएगा 3 टाइम्स e⁻x प्लस 2, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 3 टाइम्स e⁻x, ये माइनस और ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, in the denominator we have 3e⁻x plus 2 the whole square. अब थोड़ा सा ही सिंप्लीफिकेशन रह गया, सो लेट्स फिनिश दैट। अब ब्रैकेट में ये 3 टाइम्स e⁻x, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 दैट इज 4, सो 3 टाइम्स e⁻x into 4 divided by 3 times e⁻x plus 2 the whole square. ये मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़्यादा इज 12 टाइम्स e⁻x divided by 3e⁻x plus 2 the whole square. So this is dy by dx. नेक्स्ट है अगेन डिवीजन रूल है, u अपॉन v फॉर्म में है, ये आ गया हमारा u टर्म और ये v टर्म। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है u में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है यहाँ पे x एंड e⁻x का, सो डिवीजन रूल के अंदर ही भी यहाँ पे देखिए ये टर्म में प्रोडक्ट रूल छुपा हुआ है। सो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ओवरऑल तो पहले हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं और जहाँ पे इनका डेरिवेटिव आएगा x एंड e⁻x का, वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So let y be equal to x times e⁻x and denominator में x plus e⁻x. So differentiating with respect to x, we get आएगा dy by dx is equal to, पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, x plus e⁻x into derivative of numerator x into e⁻x minus, फिर आएगा x into e⁻x times derivative of x plus e⁻x the whole thing अपॉन v स्क्वायर, यानी x प्लस e⁻x the whole square। अब इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, u इंटू वी वाला रूल। यहाँ तो एडिशन है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो सिर्फ ये स्टेप का ध्यान देना है। सो लेट अस डू दैट। तो ये फर्स्ट, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, x प्लस e⁻x। अब चाहे तो हम डायरेक्टली u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट शोइंग स्टेप्स इन डिटेल्स। तो u इंटू वी का अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, तो यह आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x दैट इज e⁻x प्लस e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, सो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, माइनस, अब आगे बढ़ते हैं, x इंटू e⁻x, ब्रैकेट में ये एडिशन है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, x का 1 प्लस e⁻x का e⁻x the whole thing divided by x plus e⁻x the whole square। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये तो एज इट इज रखते हैं, x plus e⁻x इनटू, इन दोनों में से हम e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा x plus 1 माइनस x इंटू e⁻x इंटू 1 प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय
नीचे x प्लस ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। अब ई रेज टू एक्स और ये ई रेज टू एक्स फिर से कॉमन हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस x टाइम्स वन प्लस e raised to x divided by x plus e raised to x the whole square. Now if you want we can stop here, या इसे और अगर हम simplify करें brackets ये multiply करके और भी हम simplify कर सकते हैं. Let's do that. देखते हैं क्या आता है. Otherwise यहाँ तक भी ठीक है. This is also dy by dx. ये मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एंड x, फिर e रेज टू x इंटू एक्स, तो आएगा x टाइम्स e रेज टू x, e रेज टू x इंटू वन, याद आएगा e रेज टू x. अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स टाइम्स e रेज टू x. तो सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू, जहाँ तक आप होता है सिंप्लीफाई कीजिए. अदरवाइज एक बार डेरिवेटिव्स आ गए तो वहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हो बेसिक कॉमन टर्म्स लेके. तो e रेज टू x, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गए टर्म्स, ये हमारा x और ये माइनस एक्स भी कट हो गया, तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू x, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय नीचे आएगा x plus e raised to x the whole square. So this is dy by dx. Find the derivatives using the first principle. Now we know that अगर हमारा function है f of x, तो अगर हम first principle use करते हैं, then derivative of f of x, that is f dash x, is given by limit of f of x plus h minus f of x upon h as h approaches 0 या h tends to 0. So this is the first principle. So basically आपको इसका derivative ढूंढना है using limits. So let's start. तो suppose इसे हम नाम दे देते हैं f of x, ये जो given function है. So that is 3x square plus 4. फिर हम ढूंढेंगे f of x plus h, यानी जहाँ जहाँ x है उसे हम रिप्लेस करेंगे x plus h के साथ. So ये रहेगा 3 times, ये x हटा देंगे, यहाँ पे आएगा x plus h the whole square plus 4. Let us simplify this. So 3 times ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक्सपेंशन यूज करते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 4. So open the brackets. So we have 3x square plus 6 times x into h प्लस ये 3 into h स्क्वायर, तो ये रहेगा 3h स्क्वायर प्लस 4. तो हमारे पास f of x आ गया, f of x plus आ गया, x plus h आ गया, and now we use the formula. So f dash x is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h as h approaches 0. अभी सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. इधर h approaches 0, f of x plus h, ये वाला टर्म पूरा. So this is 3x square plus 6 into x into h plus 3h square plus 4 minus f of x, ये माइनस करेंगे. तो अगर हम माइनस करेंगे तो रहेगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4, राइट, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h.
नाउ लेट अस सी क्या कैंसल आउट हो जाता है. सो वी हैव लिमिट एज h अप्रोचेस 0, ये 3x² माइनस 3x² गया, प्लस 4, ये माइनस 4 चला गया. इसमें से हम h अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एच divided by h. And now we can cancel h because this is not 0, right? H is approaching 0. Hence h is not equal to 0. So we are left with limit of 6 into x plus 3h as h approaches 0. अब इसे हम डायरेक्टली h को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इन द डिटर्मिनेट फॉर्म, राइट. अपॉन 0 तो है नहीं, तो अब डायरेक्टली h की वैल्यू इधर 0 डाल देते हैं हम. तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 0. सो फाइनली हमारा डेरिवेटिव आता है दैट इज f डैश x. सो f डैश x इज इक्वल टू 6x. नेक्स्ट है x इंटू रूट एक्स. सो सपोज हम लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x टाइम्स रूट एक्स. अब इसे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x को अगर हम अंदर ले लें रूट के, देखिए तो ये हो जाएगा x², राइट. ये अगर अंदर चला गया तो इंटू x, ये वाला जो x है. सो दिस एक्चुअली बिकम्स रूट ऑफ x³ राइट. और अब हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h, यानी ये x को हटा के हम x प्लस h डाल देंगे. सो दिस विल बी रूट ऑफ x प्लस h द होल क्यूब. अब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं तो हमें मिलेगा f डैश x, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. देन f डैश x is given by limit of f of x plus h minus f of x upon h as h approaches 0. अब ये दोनों फंक्शंस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट और आगे रूट ऑफ x plus h the whole cube minus root of x³ divided by h as h approaches 0. We know that जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाला सम आता है तो हम रैशनलाइजिंग टेक्निक यूज करते हैं. इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. So we have limit h approaches 0, right. तो ये रूट एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइजिंग टेक्निक यूज करते हैं हम. सो ये तो एज इट इज रहेगा माइनस ये भी एज इट इज अपॉन h. अब इसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं, ये आएगा रूट ऑफ x plus h the whole cube plus root of x³. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम कॉन्जुगेट से, तो इधर ये सेम टर्म नीचे लिखना है. ओके, एंड नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. सो लिमिट h अप्रोचेस 0. अब देखिए दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b². तो न्यूमरेटर में ऐसे आ जाएगा, देखिए a² यानी x प्लस h द होल क्यूब, ये अंडर रूट का स्क्वायर. सो a² माइनस b², b यहाँ पे ये वाला टर्म है. सो स्क्वायर रूट ऑफ x³ द होल स्क्वायर. So a plus b
इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये सब टर्म्स आएंगे, h इंटू रूट ऑफ x प्लस h द होल क्यूब प्लस root of x cube. Okay, now let us simplify further. क्या आता है देखें, ये रूट तो हट जाएगा स्क्वायर के वजह से, so in the numerator we will have ये h approaches 0, ये रह जाएगा x plus h the whole cube, right? ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट तो एलिमिनेट हो गया, माइनस ये भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाता है, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद एक्स क्यूब, और नीचे वो डिनोमिनेटर कंटिन्यूसली लिखते रहना है आपको, ये आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस एच द होल क्यूब प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे a प्लस बी द होल क्यूब का, so limit h approaches 0, so we have x cube plus 3 into x square into h plus 3 into x into h square plus h cube minus ये वाला term minus x cube divided by h times root of x plus h the whole cube plus root of x cube. ओके, अब एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बाकी के जो तीन टर्म्स है देखिए उसमें h ये कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर में, राइट? तीनों में h है तो वो h लेके हम ये डिनोमिनेटर वाले h के साथ कैंसिल कर देते हैं, सो ऊपर हम ये h कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर, ये तीनों में से हमने h कॉमन ले लिया, इन द डिनोमिनेटर वी हैव h इंटू, ये सेम टू सेम लिखना है, x क्यूब प्लस इधर भी वाला x क्यूब टर्म। ओके, अभी h और h हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ रीजन लिखते हैं h अप्रोचेस 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0। अब बाकी के जो टर्म्स है उसमें हम h की वैल्यू अब सेफली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डाल देते हैं h की, तो एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ h की अप्रोचिंग वैल्यू, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 0 प्लस ये h स्क्वायर यानी ये 0 स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 0 द होल क्यूब प्लस यहाँ पे रूट में x क्यूब। नाउ इफ यू ऑब्जर्व ये टर्म तो 0 हो गया, ये भी 0, तो न्यूमरेटर में वी हैव 3x स्क्वायर, ये आएगा हमारा रूट ऑफ x क्यूब प्लस रूट ऑफ x क्यूब, तो in the denominator we have 3x square और नीचे है 2 times root of x cube. If you want you can simplify further, देखिए तो ये 3x square, फिर इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें से अगर x स्क्वायर इंटू एक्स किया हमने तो ये हो जाएगा x रूट x, है ना? इसे अगर हम स्प्लिट करते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो एक x बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x, ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं, सो वी हैव 3x अपॉन 2 रूट x। फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, देखिए तो सिंप्लीफिकेशन जितना चाहे आप जा सकते हो आगे, राइट? और नीचे ये 2 रूट x, देखिए रूट x भी कैंसिल हो गया,
अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो फाइनली वी हैव 3 root x upon 2. So yes, this is f dash x. Next है 1 upon 2x plus 3. So again, let f of x be equal to 1 upon 2x plus 3. So therefore, f of x plus h, तो ये जो x टर्म है वहां पे आ जाएगा x plus h. So 1 upon 2 times x plus h plus 3. And now we apply the first principle. So f dash x, इसका फॉर्मूला है limit of f of x plus h minus f of x upon h as h approaches 0. Now let us substitute the functions here. तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं f of x plus h, ये पूरा टर्म. So 1 upon 2 times x plus h plus 3 minus 1 upon, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 2x plus 3 divided by h. अब ये अपॉन h नहीं लिखना है, तो इसे अगर हम साइड कर दें तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1 by h हम लिख सकते हैं, right? So we can simply write limit h approaches 0. इसे हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 1 by h. और अब ये इक्वलाइज करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर. सो 2x plus 3 into 1, that is 2x plus 3 minus ये पूरा टर्म 2 into x plus h plus 3, ये पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 times x plus h plus 3 into 2x plus 3. ओके, तो ये इक्वलाइज किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर्स को, और ये जो h है हमने इधर साइड में लिख दिया है एज 1 by h. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई वेरी केयरफुली. लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 1 by h. अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x plus 3, ये आएगा 2x और ये आएगा 2h, और ये नेगेटिव साइन है, सबका साइन चेंज हो जाएगा. सो माइनस 2x माइनस 2h, और ये इधर आ जाएगा माइनस 3, और नीचे तो एज इट इज रहेगा ये पूरा का पूरा टर्म 2 into x plus h plus 3, ये ब्रैकेट, और दूसरा 2x plus 3, ये वाला ब्रैकेट. अब इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है. 2x गया, ये 3 भी चला गया. सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेस 0, ये आएगा ऊपर माइनस 2h, यही रह गया, राइट? और नीचे ये h के साथ ये पूरा टर्म, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं. 2 times x plus h plus 3 into 2x plus 3. Okay, now we could also cancel h because h is approaching 0 and hence h is not equal to 0. अब ये जो टर्म्स रह गए उसमें हम h की अप्रोचिंग वैल्यू दैट इज 0 वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें इस लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी. तो -2 अपॉन, तो h जहाँ पे है वहाँ 0 लिखना है. सो 2 times x plus 0 plus 3, इसमें h नहीं है, ये x है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2x plus 3.
So finally we have minus 2 upon ये x plus 0 होता है x, so this is 2x plus 3 and again this is 2x plus 3. So 2x plus 3 ये first bracket, second bracket is also 2x plus 3. तो इसे हम लिख सकते हैं as minus 2 upon 2x plus 3 the whole square. So this is f dash x. अब नेक्स्ट है x minus 1 upon 2x plus 7. So we say let f of x be x minus 1 upon 2x plus 7. So therefore f of x plus h जो होगा तो यहाँ पे x plus h आएगा and 2 times ये भी हो जाएगा x plus h. So this is x plus h minus 1 और नीचे भी 2 times x plus h plus 7. And now we can find f dash x. So f dash x is given by limit of f of x plus h minus f of x upon h as h approaches 0. अभी अपॉन h को हम साइड ही करके लिख देते हैं और ये दोनों को हम सबट्रैक्ट करते हैं. सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 1 बाय h को हम साइड में रखते हैं और इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे. सो x प्लस h माइनस 1 अपॉन 2 times x plus h plus 7 माइनस f of x यानी x माइनस 1 और नीचे 2x प्लस 7. अभी पूरा हमें सिंप्लीफाई करना है. सो वी हैव लिमिट एज h अप्रोचेस 0, ये 1 बाय h. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2x प्लस 7 इंटू ये है हमारा x प्लस h माइनस 1 माइनस अब ये मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 इंटू ये अगर हम ब्रैकेट्स ओपन कर दें ये जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 7. वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस 2h प्लस 7. तो स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे यहाँ से और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी अगर चाहिए तो हम ये ओपन अप कर देते हैं. सो 2x प्लस 2h plus 7 into 2x plus 7. Okay, now we open the brackets in the numerator. ये आएगा h approaches 0, ये 1 by h. अब पहले 2x को ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2x square plus 2xh माइनस 2x अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 7x प्लस 7h माइनस 7. अब ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं पहले x के साथ और माइनस है तो साइन भी चेंज करते जाना है. सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू h माइनस 7x. अभी माइनस 1 के साथ लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है. सो माइनस 2x so that becomes प्लस 2x. फिर ये माइनस 2h का हो जाएगा प्लस 2h और ये माइनस 7 का हो जाएगा प्लस 7. ओके, डिवाइडेड बाय ये दो ब्रैकेट्स 2x प्लस 2h प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7. ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं. अब काफ़ी सारे टर्म्स कैंसिल होने चाहिए यहाँ पे. सो वी हैव लिमिट h approaches 0, ये 1 by h as it is. 2x square ये कैंसिल हो गया.
2xh गया, 7x, ये 7x चला गया, -2x प्लस 2x ये भी चला गया। दैट्स इट। 7h है यहाँ पे और यहाँ पे 2h है, तो 7 + 2 दैट इज 9। तो ये आ गया 9h और ये -7 एंड +7 भी चला गया। करेक्ट। सो ऊपर सिर्फ ये 9h रह जाता है और नीचे ये 2x + 2h +7 और दूसरा ब्रैकेट 2x + 7। ओके। अब ये h और ये h भी हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज h approaches 0, hence h is not equal to 0. And now we can substitute the approaching value of h which is 0. तो ऊपर तो रह जाएगा 9 और नीचे यहाँ पे h है सिर्फ, देखिए ये 0 हो जाएगा। So this will be 2x plus 2 into 0 0 plus 7 और ये 2x plus 7 as it is. So we have 9 upon 2x plus 7 into 2x plus 7. So finally जो आंसर आता है वो है हमारा 9 upon, ये 9 प्रॉपरली लिखते हैं, 9 upon, this will be 2x plus 7 the whole square. So this is the final f dash x.